Raju ji. First of all, congratulations to all the candidates who have qualified mains this year, and we all wish you all the best. This is really a nice platform. सबसे पहले तो मैं संकल्प परिवार का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा for giving me such an opportunity to talk to the kids. और आप सब एकदम सही मार्गदर्शन में जा रहे हैं. This is one of the, I would say one of the नहीं, the only platform that can prepare you for the personality test. So you made the right choice. Starting up, I already had a session in the morning related to social problems and its pragmatic solution from the perspective of administration. Abhi jo session hai, mostly it is about how to prepare for CSE personality test. तो सबसे पहले let's discuss about why it is important. तो मुझे जो लगता है the most important part of this whole procedure is I believe is personality test, mostly because एक तो this is such an ecstatic moment, this is such an wonderful opportunity where you are going to actually enter those I would say the famous building of UPSC. आपको सबको excitement होगा जो लोग पहली बार जा रहे होंगे. Plus क्या है कि the kind of scores that you fetch in personality test, that decides two things: one, whether you are in the list or not; two, whether you are into service of your choice or not. If you have decent scores, very good scores in the mains, even if and you actually do really well in the personality test, you will be getting your service of your choice. और अगर आपका बहुत ही ऐसा low marks है, below average है in the mains, a good score in personality test can make you to the list, which will actually boost your next year's performance, or at least give you a security in terms of कि चलो you got some service, even if it was your third choice or fourth choice. That is why I believe this is one of the most crucial and important phase of this exam. Abhi just a small comparison with the mains, pre and prelims. I would say this is very random in terms of it's highly subjective. What they say, the subjectivity of this exam or this service increases with the levels of with time. You know, pre is a bit uncertain, mains is more uncertain in terms of subjective answers, who checks your copy or what kind of marks you get every year, and then interview or the personality test is even more subjective. And when you move forward, if you move forward to the cadre allocation, to your service allocation, and then the place you get posted in, the subjectivity or the randomness increases. So let's believe in God and move forward. A small introduction so that you can connect with what my background is. So I am from Jharkhand, did my schooling from Jharkhand. And after that, I did my engineering from PIT Mesra as computer science engineer, worked for a couple of years in Bangalore in Oracle. And after that, for in between only, I would say, in the meantime only, I was working with a couple of NGOs, couple of other organizations on a cross subsidy model, so that I could understand what social entrepreneurship is all about, how service can change this the lives of people. Is tarah ke something or the other I was doing. In between, I decided to take this exam in 2012 itself. 14, I got into IRS income tax. I had 190 in the interview. It was David P. Simla sir score. 15, I had 210, which was one of the highest scores that year. And I would say that the whole credit to the marks goes to the preparation that I did for the interviews. So many people say कि personality ऐसे overnight built नहीं होती है, ऐसा नहीं कर सकते आपकी. You can change overnight and your personality will be just so good that you will perform good and all that. No, that is not possible in a month or in a couple of weeks. But for me, it was always preparation, in the UPSC mode, preparation mode. So I thought I can prepare everything under this sun. जब कुछ भी करना है, I can prepare it. So I tried my best, and I would discuss those couple of things with you. First of all, एक तो है कि what kind of clothes you wear. Standard answers हैं इसके, there is nothing new about it. I don't want to waste your time. So standard answers हैं, just don't wear anything uncomfortable that will make you conscious in the interviews. You need to be at your best. You can be only at your best when you are normal. When you are feeling uncomfortable, everybody is in suit, I'm wearing jeans, पता नहीं कैसा लगेगा सामने वाले को. तो ये जब back of the head में, if it is running in the back of your head, you can't give your best.
That's the only reason you should be wearing those normal clothes. And the best possible is सूट वूट पहन लो तो बहुत अच्छा है. जैसे I wore a suit on 24th May को मेरा इंटरव्यू था, and one of the gentlemen asked me, it's so hot in here, outside it must be more. Don't you think that it is, this weather is not suited for the suit you are wearing? Why so? And I answered, sir, on the most important day of my life, I just wanted to look the best. That is why I thought of wearing this suit. Uske baad unhone, they moved on to other questions like, do you think dressing nicely or wearing a suit only makes a person, look the best, something like that. And I answered it recently in different ways. That's not topic of discussion, but the topic of discussion is you should wear normal good clothes so that you feel comfortable, you feel confident, you don't feel conscious of doing anything weird in the interview. Second है, people talk about certificate ले जाना है, passport size photograph, whatever is the criteria, I don't know these days, but whatever is required or whatever you have heard or whatever has been taught, just take them along. ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो आपको कुछ मुश्किल हो जाएगी, बिना फोटो के आ गए तो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ये है कि if you have those things, there will be nothing in your head. सब लोग जमा कर रहे होंगे, आप भी जमा कर दो. अभी सब लोग जमा कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे होंगे, you will feel कि यार कुछ तो missing है मेरा. And if that keeps running in the back of your head, you can't perform the best. That's the only reason you should be ready with anything or everything that they have asked. Then the entry thing. So I would say you should practice a lot in terms of entering the room. I used to do it a lot in my room, making one of my friends or some of my friends sit inside and then let me know how the entry was. So I just take the example of my time when I went for the entrance, went for the personality test. The person at the gate asked me कि ठीक है आप अंदर जाइए, and I opened the door lightly and asked, may I come in, ma'am? And she, in a very high pitched voice, she said no. So I got, really low कि यार ये क्या हो गया मतलब. And you are already very high on, in terms of anxiety and all, and somebody telling you like this कि no, मुझे तो डर ही लग गया कि लगता है कि अब मतलब what you say in normal terms कि बोनी खराब हो गया, मतलब the starting itself has gone down. So I was a bit low, but थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसको बोला कि भाई पहले पूछ लेना था तुम्हें. So then he went inside. Ma'am was asking for some warm water or something. Then he came back and then he said कि सर अब आप जाइए. I told him कि भाई मैं नहीं जा रहा, अभी तो दूर मेरे सामने पूछ दरवाजा खोल के कि जाना है कि नहीं. Then only I'll enter. नहीं सर मैंने पूछ लिया. हमने नहीं पूछो मेरे सामने, मैं दोबारा नो सुना ना तो यही बेहोश हो जाऊँ. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि एंट्री एग्जिट ये सब चीजों में ना, the only point I want to make is you need to keep gathering yourself. There can be accidents, कुछ भी हो सकता है, such a small incident, you never know क्या होने वाला है ना. दरवाजा खोल के घुसे ही कुछ awkward situation हो गया, आप लड़खड़ा गए, आप गिर गए, कुछ भी हो सकता है, anything. Just I want to tell you that you practice these things at home and always think that whenever I am there, I will gather all that I have in terms of courage, confidence, regather it whenever it goes low and then again fight that. फिर मैंने श्योर करा के फिर मैंने बोला may I come in ma'am, and then she said yes. तो ये बात एक है ना. नेक्स्ट है पोस्चर की बात करते हैं कई लोग. तो मेरे हिसाब से पोस्चर शुड बी स्ट्रेट बट नॉट स्टिफ, शुड बी वेरी नॉर्मल, वेरी काम, कंपोज्ड. ऐसा भी टेंस भी नहीं दिखना है और इतना हैप्पी भी नहीं दिखना कि बस बहुत मजा आ रहा है टाइप का, ऐसा भी नहीं दिखना है. शुड लुक कंफर्टेबल, दैट्स इट. अब पोस्चर में मैं थोड़ी सी एक बात बस कह देना चाहूंगा कि you should not change your postures while answering questions. So I have been taking mocks also or giving mocks also. तो उसमें क्या होता है कि if they ask you a couple of questions and you are not able to answer them, you tend to go down in the chair itself. एक question पूछा, no sir I don't know, no sir I don't know, no sir I don't know, and you go down in the chair itself. So that should not happen. They are looking for men of caliber, men of strength, who will not be bogged down by such questions for which answers you don't know. तो एक तो वो है. दूसरा अगर आता है, मतलब पहला क्वेश्चन पूछा आपने बता दिया, you should feel good about it but not happy about it. No audio. I think I'm audible. Somebody yes, sir. tell me. Yes sir, you are audible sir.
fine. So the problem is with the other end. Whoever has texted, please check your own setup. So when you answer and you are able to answer it, don't be over excited. एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ऐसे हो गया, दूसरा देखिए एकदम ही खुश हो गए, तीसरे में तो मतलब पता नहीं चेहरे पे एकदम लाली सी आ गई है, तो वो भी नहीं होने देना है. You should just feel good about it. That's it. पर वो चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए, अरे इसको तो 2 क्वेश्चन का आंसर क्या पता होगा, इसने में ही खुश होने लग गया है टाइप का. तो फिर क्या होगा ना, दे विल, उनका ईगो हर्ट हो जाता है. देन दे विल आस्क सच क्वेश्चन जिसके आंसर शायद उन्हें भी नहीं पता हो और जिसके आंसर होते ही नहीं होंगे दुनिया में. देन यू विल बी पुट इन अ वेरी डिसकंफर्टेबल पोजीशन. तो इतना भी खुश नहीं होना है कि सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाए और फिर आपसे ऐसे सवाल करे जिसके जवाब भी नहीं होते. यार एकदम ही टेक्निकल घुस जाएगा आपके इंजीनियरिंग में, कुछ पूछ लेगा था कि अच्छा बहुत हीरो बन रहा है, लेट्स आस्क समथिंग व्हिच विल बी टफ फॉर हिम. तो वो एक चीज देख लेना है ना, एक्सप्रेशन की जो बात कर रहा था. About giving answers, I would say I have been practicing during my personality test preparation to give answers in a very crisp manner. Whatever question you prepare, answer it in 1 or 2 lines, maximum 3 to 4 lines, and try not giving tales until unless you want to give it. It's like a chess. Whenever you prepare, it's like a chess in terms of when you do this move, they will do that move. तो वो पहले से आपको पता होना चाहिए. जैसे I'll take the example of my name itself. So if they ask me, okay, Aditya, what's the meaning of this word? If I'm good in astronomy, if I'm good in knowing the universe, I'll say sir sun. And then he will ask, अच्छा sun का नाम आदित्य है, okay, और sun के कितने हैं, कितने sun हैं, nearest sun और दूसरा कौन है, ये सब चला जाएगा. और अगर मुझे थोड़ा सा, if I'm good at Sanskrit or good at knowing Vedas and all that, तो I'll say कि sir Aditya is just one of the 12 sons of Aditi, who is this, and it is mentioned in this Veda and that Veda. Then I am actually giving them a tale to catch and move my interview in a particular direction. Every answer that you prepare for, make it crisp. Either end it as it is, either end it in a way that there is no tail attached, or give a tale which you know that you will be prepared for, or which you have answers already to. ठीक है. Next, there are questions like whom to see. So see, marks generally is decided and given by the chairman, but it is not good to look at somebody else and talk to somebody else. So whoever has asked you a question, start answering him first. If it is a one-liner, answer him and then come back to the chairman. If it's a 2-liner, 3-liner, 4-liner, start answering him by looking at his face. And then in the second line, go to the chairman, go to the 5th person, then come back to the person and end your answer with the person who has asked your question. So that he can, if there is a tail question, he can ask you. So the point is, if it's a 1-liner answer, just answer the person who has asked you. If it's a 4-liner, 5-liner, 6-liner, you can move around only to end with the person who has asked you the question. So that if you think that he wants to ask another question related to it or otherwise, he can ask you. उसके बाद है, there are people who will talk about ending remarks and all. So I believe there should be no ending remarks. जैसे उन्होंने थैंक यू कहा, आप भी थैंक यू बोल के चुपचाप निकल लेना है. It has been wonderful experience talking to ये सब में, they are not your friends. तो ये सब नहीं करना है, चुपचाप निकल लेना है. होंगे कुछ लोग ओवर स्मार्ट जो ये करके शायद अच्छा नंबर लाते होंगे, बट मुझे लगता है कि जबरदस्ती का मतलब, there is no point of taking an arrow behind your back. So just end it as it is, by politely saying thank you and all that. There are people who will be discussing or asking me कि सर मेरे तो लास्ट इंटरव्यू में बहुत फैक्ट पूछ रहा था. Then there will be people, इतना knowledge based questions था. There will be people who will be talking about कि सर इंजीनियरिंग में घुस गए ये लोग, मुझे तो याद ही नहीं था कुछ भी. And then there will be people you will be discussing that इससे तो बस यही पूछ रहा था, when you become a collector what will you do, what do you think, why IPS is better than IRS, why IRS is better than IPS, something like that. So these are opinion based questions, or attitude based questions. So what to prepare? वैसे तो you should prepare for all, but given the time constraints, obviously we always have to prioritize things. During मेंस प्रिपरेशन भी है, प्री के प्रिपरेशन में भी आपने देखा होगा कि आर्ट एंड कल्चर से कितना भी क्वेश्चन आ जाए, लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉलिटी होता है, क्योंकि पता है उससे जो आएगा उसके आंसर तो पता ही होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं.
तो श्योर शॉट जो है उस पर हम डिसाइड करते हैं। वैसे तो ये काफी सब्जेक्टिव है, बट स्टिल टू नो वेयर योर इंटरव्यू विल हेड टू, you should see your own DAF. What I have noticed over a period of time by taking classes of so many people or discussing with so many people who have taken interviews, personality tests, whoever has a DAF which is impressive in terms of college, school, passing percentage, job, if it is really good, they will directly switch to attitude-based questions. Because they know you have cleared means you must be a good candidate. And since your DAF is so good, no, IIT दिल्ली से है, उसके बाद या एम्स से है या टिस से है ना, IIM अहमदाबाद से है, अच्छे कॉलेजेस से है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई कॉलेज खराब है, अच्छा है, रिनाउंड कॉलेज से है, एंड गुड स्कोर्स, 10th में 90+, 12th में 90+, and then in graduation also you have a very good CGPA. If they see such profile, they start believing कि बंदा तो अच्छा है या बंदी तो अच्छी है, मतलब she is good in studies, ये तो इसके डैप से प्रूव हो गया, मेंस भी क्लियर कर लिया है, तो दैट मींस she or he must have prepared well also. Now let's see whether he or she is fit for the service or not. Then they will ask attitude based questions. Now imagine a DAF that you are holding as a chairman of the interview board. Imagine a DAF which mentions a person who has done his schooling from a village, from a small school, and then passing percentage is 60s, 50s, then a college from a college which is not known to me, and passing percentage is also 6 CGPA, 6.5 CGPA. And what is your career option? No, directly from the this 4 years से तैयारी कर रहे थे और अभी 5th year में इंटरव्यू देने आए। अब this DAF proves that the kid is a miracle kid, no, who might not have been good in his student life, but has somehow cleared mains, maybe after hard work or maybe out of luck. अब ये चेक करने के लिए वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने जितने भी ऐसे फैक्ट बेस्ड लोगों को देखा, उससे पिछले पूछते हैं। आई हैव सीन पीपल आस्किंग couple of students about, अच्छा, what is your engineering subject? Then they will say it's electronics or thermal engineering. अच्छा, ये बताओ 4 stroke इंजन में कितने होते हैं, ये बताओ थर्मल ये क्या होता है, वो क्या होता है, you know, they'll go into मतलब minute details of engineering. वो तभी जाते हैं ना जब उनको लग जाता है कि मतलब इसका स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट कैसा है। तो आप अपना डैफ देखिए, डिसाइड करिए, उसके बाद उसी हिसाब से ज्यादा फोकस उस पर करिए जो आपको लग रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज वैसे तो प्रिपेयर आपको सब कुछ करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो assumption रिलेटेड टू बोर्ड्स। ट्रस्ट मी, वी ऑल हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन टू, there have been very bad boards giving good marks, so called bad boards, and there have been very so called good boards giving very bad marks. So you don't take any assumptions in the hall. You take only one assumption. I would recommend is that you are the best, and they are only to know how good you are, not कि तुम में कमियां क्या है, just you need to showcase how good you are. That's it. तो उसके आगे there will be times when they will be jumping between all these questions like fact based question, knowledge based question or attitude based question. जैसे मैं अपना ही example अगर लूँ, they asked me what is the problem of child labor in India. I said, sir, the problem lies in the term itself. While labor is an economic term, as an economic term, it demands efficiency, economy, more number of hours of work, exploitation. While child is a cultural term which demands quality parenthood, health, education, love, care. And this paradoxical nature of this term leads to all sorts of problems. So अभी ये थोड़ा flowery type का जब उनको आंसर दिख गया, तो they started asking me, okay, tell me the recent amendments done in Child Labor Act. So they are basically, you see, they are basically checking कि सिर्फ बातें बनाता है या डेटा भी इसको है, नॉलेज भी है इसको। एंड जैसे ही मैंने वो जवाब दिया, वन बोर्ड मेंबर स्टार्टेड, ऐसे 3-4 मैंने थोड़े फ्लावरी आंसर्स दिए थे, उसके बाद कपल ऑफ बोर्ड मेंबर्स स्टार्टेड आस्किंग मी, टेल मी द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड, टेल मी द ट्राइबल परसेंटेज ऑफ झारखंड, टेल मी द नंबर ऑफ इयर्स a tribal leader was the ruler of Jharkhand. ऐसे करके they started asking me fact based questions, जिसके जवाब मैंने दे दिए। तो ये आप पूरा प्रिपेयर करके ही जाना, whichever state you belong to, whichever, so that if they start asking 4-5 data based questions and you are able to answer them, trust me, there will be 2 things that will happen. One, they will shift to the attitude based questions, which you definitely want. You don't want to feel sorry for not knowing data structures in interview board of civil services. You don't want to feel sorry for not knowing
what happens inside a transformer or inside a generator in a civil services interview. So it is good that you are taking the board towards the attitude based, opinion based questions. वो तभी कर सकते हो जब आप ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर झटाझट दे दो. तो वो एक चीज जरूर करके जाना, so that you feel confident, one, and two, you are able to take the board towards the opinion based, attitude based questions. उसके बाद next है agreeing to disagree or disagreeing to couple of points. Humbly disagree, and if a mistake is already done, please accept it and move on. उनसे बहस करके लड़ाई करके जीत के आपका तो कुछ नहीं होना है, उनका तो कुछ नहीं होना है, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है. तो they are so elder to you, to us, they are so experienced. चुपचाप सॉरी बोल के निकल लेना है अगर कोई गलती हो गई, और नहीं भी है तो चुपचाप डिसएग्री कर लेना. I'll humbly disagree, sir. I'm extremely sorry, sir, but I'll disagree on this because of this. Give a reason and do a disagreement. That's it. ठीक है. अभी इसके बाद we will move on to preparation thing. The thing that I was talking about, how to prepare for the personality test. Trust me, for 3-4 months that I had that time, I prepared vigorously for the personality test, and the outcome was more than 80% questions in the interview were directly from what I prepared for. So how to do it? One is DAF. Pick each and every letter of DAF to an extent of preparation that nobody would have thought of, that you also would not have thought of. I used to tell my friends that this interview has done one thing, it has made me know myself better. आज तक तो सोचा ही नहीं था यार अपना नाम का मीनिंग क्या है, और मीनिंग अगर ये है तो मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, और मैं क्या कर सकता हूँ इस नाम के साथ. इतना कब सोचा यार, नाम रख दिया, माँ बाप ने हर जगह लिखते रहे जिंदगी भर, कभी सोचा क्या? कभी नहीं सोचा. So the point is, this should be very clear, you should have a very good clarity in terms of small things about yourself. DAF में अगर छोटी सी भी चीज है कि आपको सब पता होना चाहिए, because you never know what they are looking. मतलब because my birth date is on June 6th, I know the history and geography and all the chemistry of Sunil Dutt because his birthday falls with me. You never know, when he was minister, his personal secretary, who might be IAS then, is retired or is in the UPSC. तो उसको याद होगा, पूछेगा अरे कोई बड़ा पर्सनालिटी से तुम्हारा मिलता है, and you will say सर याद तो नहीं है कि ये है वो है. ठीक है. या फिर इंसिडेंट्स लाइक श्रीलंका में जो अटैक हुआ था इंडिया का, वो मेरे बर्थडे के डेट के दिन ही लैंड किए थे. तो मेरा कहने का मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके डैप से निकाल के you need to make them quite available to yourself in terms of data, in terms of opinions, in terms of facts. अगर आप किसी भी प्लेस से बिलोंग करते हैं, like I belong to Chas in Bokaro, so one of the board members asked me, do you know Chas Nala incident? Obviously I knew because I had prepared it really well. आप हर एक लेटर को गूगल कर लो, लास्ट 8-10 पेज तक जाओ, देखो कुछ तो आएगा. जो आएगा आपको लगता है कि अगर किसी की तरह वो एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिटिकली उनसे कनेक्टेड हुआ उनके लाइफ से, डू टेल देम, डू प्रिपेयर फॉर इट. They asked me Chas Nala incident. I was knowing it. I told them yes sir, there was a movie made on it, Kala Patthar. It was an incident based on this. जो भी बताया. He started laughing. Okay, you might be very small then. So I said no sir, I was not born then. Then he started laughing. Yeah. It was way back. I was very young as an officer. I was in the committee that went for investigation in Chas Nala, and there will be, there was USSR helped us. तो मुझे वो भी पता था. मैंने बताया हाँ सर, इंडिया में सबमर्सिबल पंप्स तभी नहीं होते थे, and we imported submersible pumps from Ukraine, basically erstwhile USSR. तो द पॉइंट इज कि इतना डिटेल तक आपको अपने डैप में जाना है कि कोई क्वेश्चन मिस ना. ठीक है. दूसरा है प्रिपरेशन के लिए, एक तो ये है, अब इसमें आगे बताया था. सो एसेंशियली आई मेड अ 5000 क्वेश्चंस बुकलेट. मेरा टारगेट है कि 5000 करूंगा. 3-4 कॉपीज भर रखी थी मैंने, right from everything, every DAF element, every connections that I could make. Like in David P. Simla sir's board, he said, okay, he was reading my DAF. Okay, sociology, optional, Bangalore.
Bangalore, Mysore is nearby, right? I said, yes, sir. Do you know MN Srinivas? I said, yes, sir. अब देखो MN Srinivas ने ना research करा है Mysore. How he connected? See, I had an optional sociology. He saw that I was working in Bangalore. He immediately thought कि Mysore तो बगल में है. Sociologist Mysore का सबसे बड़ा वही था, मतलब इंडिया का one of the biggest sociologist था. चलो उसी के बारे में पूछ लेते. What I want to tell you is, you try to draw such connections from your dad. Whatever is found out. जरूरी नहीं कि हर चीज मिल जाए, जैसे ये तो मुझे वहीं मिला था, पर मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना, ये बात है. एक तो ये प्रिपरेशन हो गया. दूसरा जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगता है वो है योर रूटीन. सी, we all have been preparing for last so many years, so many months and years. तो हम लोगों ने प्रिपरेशन तो काफी टाइम से कर रखा है. We all have been doing that, right? अब उसमें क्या है ना, our habits have changed. Some people will have long beards, some people will have long hair, some people will have a very bad routine of waking up at 12 in the morning, some people will have a late night study routine. ये सबके साथ है, everybody has their own way of studying, own way of living. उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, but trust me, this really has helped me, and try to do it for these 15 days ही सही. अगर 10 दिन भी बचा है इंटरव्यू में, try to do it, it will help you. Trust me, it has helped me a lot and many others. So the moment, I am also a night person, but the moment I got my mains got over, not I got results. The moment my mains got over, मुझे तो लग रहा था कि आ ही जाएगा कॉल. The moment it got over, what I did is I started waking up early at 6. Used to do yoga and exercise for half an hour or 1 hour. Have fruits only in the breakfast, only fruits in the breakfast, and then a very light lunch and a very light dinner. तो 10-12 किलो तो वेट भी कम कर लिया, और साथ ही साथ वो 2-3 महीने में, और साथ ही साथ द काइंड ऑफ ग्लो दैट यू गेट इन ऑन योर फेस. देखो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता हो, मतलब इफ आई एम इन द बोर्ड, इफ आई सी अ गाय हु इज bulky, who looks sleepy, who looks lazy, and who looks I would say not sincere. And on the other hand, I see another guy who's even if not able to answer questions, but he looks very attentive, very bright eyed, face is also glowing. Basically that depicts your health, and one who has taken care of his or her own health only can take care of others. That's it. It's as simple as that. ये आलसी लोग, मोटे छोटे लोग, ये अपना ही ख्याल नहीं रख सकते तो बाकी लोगों का नहीं रखेंगे, ऐसा परसेप्शन है और मेरा भी मानना है. तो इसीलिए ये 1 से 1.5 महीना जो टाइम था, उसमें फुल टूस एकदम वेरी गुड रूटीन, वेरी गुड फूड, ओनली गुड फूड, कोई बकवास खाना नहीं और कोई बकवास बातें नहीं. थर्ड इज लाइफस्टाइल. अभी क्या है, वी आर यूज्ड टू वेयरिंग सच टी शर्ट्स इन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज, शॉर्ट्स. कोई दोस्त क्या भी जा रहे हैं तो जीन्स टी शर्ट में चले गए. Tell me who has been preparing for last 3 years, first time interview call. Last time when you wore a suit, tell me. You don't remember. Somebody will not. तो उससे क्या होता है ना कि you keep. I'll take an example to justify what I am telling. So we all are from different places in India, right? How many of us can walk on the streets of Rajendra Nagar or Mukherjee Nagar wearing red shoes and navy blue pants or bright yellow pants? Most of us won't be able to, right? But there are kids who are doing it, right? You will find such kids in Delhi. Why? Because they have been doing it for a very long period of time. They are confident about it. तो अब आपने 3 साल, कोई 13 साल, कोई 15 साल से सूट ही नहीं पहना, पहला दिन ऐसे सूट बूट दूल्हे राजा बना के भेज देंगे इंटरव्यू में, यू विल फील अनकंफर्टेबल योरसेल्फ. तुम्हें लगेगा कि यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं तो इस टाइप का हूं ही नहीं. तो ये 15 दिन 1 महीना थोड़ा buy some good clothes, wear them regularly, so that becomes part of you. You don't look awkward in it. You don't feel awkward in it. यार ये मैंने क्या पहन लिया, मुझे तो आदत ही नहीं है टाइप का. तो मैं तो मतलब जैसे ही इंटरव्यू कॉल आया था उसके बाद तो मैं रोज ही सूट पहनता था. लोग पूछते थे अबे आज कहाँ, कोई मॉक? हाँ, झूठ बोल देता था आज मॉक, जबकि मेरा मॉक कितना ही होगा, 10 होगा, पर मैं रोज ही सूट पहन के घूमता रहता था राजेंद्र नगर में भी. ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से, ताकि आपकी भी आदत हो जाए, कम से कम अच्छे शर्ट्स, अच्छे पैंट्स, अच्छे शूज खरीद के अभी से थोड़ा सा आदत डालो. नेक्स्ट है हैबिट्स. सी, ट्रस्ट मी, गुड हैबिट्स मैटर, सो डज बैड.
तो अभी ये 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जितने भी दिन तुम्हारे बचे, उसमें ओनली प्रैक्टिस गुड हैबिट्स, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप डूइंग व्हाटएवर बैड थिंग्स सोसाइटी टेल्स इज, सो दैट ये 1-1.5 महीने में ना वो एक चेंज आ जाता है। और ऑलवेज लिव विद पीपल हु थ्रो पॉजिटिविटी टू यू। ऐसे लोग बगल में रहता है एक लड़का, भैया वो तो 4 इंटरव्यू दे रखा है, बोलता है इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, तैयारी वारी हर बार घटिया ही होता है, होना होना तो है नहीं, दे लो। ठीक है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना। उसका नहीं हुआ तो उसका मतलब थोड़ी है बाकी लोगों का नहीं हुआ, बाकी लोग का तो हो रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहना। अरे इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी होती है, ऐसे ही है यार, तुम जो हो तो वही दिखाना है, ये सब नहीं होता भाई। इट्स अ वेल प्रिपेयर्ड प्लान, वी ऑल हैव डन इट, आई पर्सनली हैव डन इट रियली वेल, और मैंने इंप्रूव भी करा है स्कोर टू एन एक्सटेंट कि मैं इंटरव्यू बोर्ड से जब बाहर निकला, माय एल्डर ब्रदर आज भी कैसा हुआ, आई सेड 230 से कम आएगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उस लेवल का गया था, मतलब जाते ही इतना अच्छा गया था शुरू से लेके लास्ट तक। मतलब लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछने ही नहीं दिया मैडम ने, किसी कोई पूछ रहा था, मैडम बोला नहीं नहीं इट्स ओके फाइन, इज गुड एनफ, ऐसा बोल के भेजा था। तो मैंने 230 स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो इसलिए था क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था, वेल प्रिपेयर्ड था। तो ये हैबिट्स अगर आपकी होगी शाम को बैठने की, ऐसे आई वुड से, मतलब अब जैसे भी लो इसको इंटरव्यू मैं प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो गाली गलौज करने की आदत है लोगों के साथ, ऐसे ही मजाक बहुत करते हैं, नॉनवेज मजाक करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बिचिंग करते हैं, ये सब चीजों से थोड़ा 1-1.5 महीना ही तो दूर रहना है। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, only talk to positive people who actually will give some positive energy in your preparation, उनसे ही बातचीत करो। इसके बाद है प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, वी ऑल हैव प्रैक्टिस, आई पर्सनली हैव अ लॉट। अपने ही कमरे में 2 लड़के को बिठा देता था, प्रैक्टिस टू द लेवल ऑफ, मतलब यू वोंट बिलीव इट, मैं सूट पहन के दरवाजा खोल के अंदर आता था, और बैठते बैठते बटन कैसे खोलना है कि पता ही नहीं चले सामने वाले को बटन खुल गया है। यू मस्ट हैव सीन ना, बटन लगा के अंदर आ रहे हैं और जब चेयर पे आप बैठोगे तो ये फूल जाता है, ऐसे निकल जाता है ब्लेजर, है ना, टाई भी ऐसे शायद थोड़ा सा निकल जाएगी, अगर आपने बटन खोल दिया है तो आराम से सेट रहता है। तो चेयर पर बैठते हुए खोलना है ऐसा कि मैं भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ और सामने वाले को पता ही नहीं चले कि मैं कुछ किया हूँ, वो भी एक प्रैक्टिस है। मतलब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझो कि इस माइन्यूट लेवल तक आपको प्रैक्टिस करनी। तो मैं कम से कम 50 बार कर चुका था, दरवाजा खोल के अंदर आके, अच्छा पता चला क्या, अब गए अंदर, आप पूरा बटन ही नहीं खुल रहा है, एक बार ऐसे देख रहे हैं, एक बार ऐसे कर रहे हैं, तो वो चीज ना हो उस दिन आपके साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इट रिक्वायर्स। तो उस तरह से प्रैक्टिस करना है, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। आपके साथ भी होता होगा, जिसने पहले इंटरव्यू दे रखा है उसके साथ तो डेफिनेटली हुआ होगा, इंटरव्यू देने के बाद आया होगा, पूरी रात सोचा होगा और अगले 6 महीने तक सोच रहा होगा, इसका आंसर वो दे देते ना तो मजा आ जाता है यार, ये नहीं बोले, ये रह गया। मॉक्स के बाद भी होता है, तो उस राइट देम डाउन। ट्रस्ट मी, इवन इफ 2 to 3 questions of such nature gets repeated and you are able to do what you realize later, maybe after 10 days, 20 days, 15 days, then you will be able to perform better। यार ये तो मतलब जो बेस्ट मैंने सोच रखा था अपने बारे में, जैसे मुझे मेरे नाम का मीनिंग पूछते हैं तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था। तो पहले ये प्रिपेयर किया, वो प्रिपेयर किया, अब उन्होंने पूछ दिया जस्टिफाई योर नेम, तो मैं प्रिपेयर था, प्रॉपरली प्रिपेयर था, तो मैं एग्जैक्टली वही वर्ड्स में बोले, इतना अच्छा लगा सुनने में। सर, being a human being, although my name meaning to my name is son, I do not want to compare myself to the mighty sun, but still if I am allowed to do so, as the matter of fact that my name means son, I have been trying to emulate some of the traits of son in my life, like selfless service, being on time, that is punctuality, जो भी वर्ड, ऐसे करके मतलब अब ये प्रिपेयर था यार, अब पहली बार तुमसे पूछूंगा तो अच्छा बता दोगे, फिर क्या होगा, घर आकर सोचोगे इसमें ये भी बोल सकते थे, इसमें वो भी बोल सकते थे। स्टार्ट राइटिंग देम डाउन वन बाय वन। ठीक, ये रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है ट्रस्ट। सम पीपल डू इट सीइंग, राइटिंग इट ऑन द पीस ऑफ पेपर, सम पीपल रिकॉर्ड इट, जैसे भी करना है डू इट। ठीक है, एक और चीज है, वी यूज टू वीडियोग्राफ आवरसेल्व्स।
तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, अभी जैसे चल रहा है वैसे वीडियोग्राफ करते थे, एंड वी यूज्ड टू सी इट लेटर, कितनी बार उंगली ऊपर जा रही है, कितनी बार चेहरा ऐसे हो रहा है, कितनी बार परेशानी झलक रही है, ये सब चीजें हम लोग पेन पेपर पे नोट कर लेते हैं। मिरर के सामने कई लोग करते हैं, लास्ट में मॉक्स भी देते हैं। सो वॉट एवर फीडबैक यू गेट, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन, दैट ओनली कैन सेल यू थ्रू, अदर थिंग्स वोंट, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो कई लोग पूछते हैं, मॉक्स, मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मेरा इसमें टेक एक ही है कि देखो मॉक बहुत अच्छी चीज है, बट वो उसी के लिए है मॉक जो इससे इफेक्टेड नहीं होता। whoever is not getting affected by mocks should only give mocks. Like if suppose mock goes well and they tell you that yeah, wonderful, you are the right kid and all that, you get so happy about it that you stop preparing. Two, if you, the people who has taken your mock tell you कि यार कहाँ से आ गए हो, कुछ प्रिपरेशन तो है ही नहीं तुम्हारा, and you get so much affected that you go down, you know, तुम्हें फील होने लग जाता है बात तो सही बोल रहा है, वहां तो गलती सही हुआ है। तो ये दोनों टाइप के लोगों को मॉक नहीं देना चाहिए, बाकी सबको मॉक देना चाहिए, ताकि वो जो रिफ्लेक्शन आपको दे रहे हैं, सो दैट यू कैन कम राइट इट डाउन एंड देन मेक इट, मेक योरसेल्फ यू नो इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे डेल्टा वाइज इम्प्रूव करते जाओ। ठीक, नेक्स्ट है हॉबी। So this is generally the most important question of all your in personality tests. ये सभी के साथ है। तो मेरा हॉबी पर बस इतना ही टेक है कि आपने जो भी लिखा है, प्लीज 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 pursue it the best possible way you can. Only now is the right time. बस इसलिए लिख दिया क्योंकि खाली नहीं छोड़ना था, तो योगा लिख दिया क्योंकि बस पढ़ लेंगे 4 किताबें पतंजलि की तो हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना। अगर योगा लिख भी लिया है और कभी नहीं भी किया है तो भी कल सुबह से करने लग जाना या आज रात से करने लग जाना। Until and unless you pursue your hobby, no amount of knowledge can give you the level of confidence that is required for personality test. Trust me. गिटार लिखा है तो प्रॉपर बजाने लग जाओ, लिसनिंग टू म्यूजिक लिखा है तो प्रॉपर सुनने लग जाओ, जो भी लिखा है। अब इतना ही वियर्ड लिखा है जो अभी नहीं कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। ट्रैवलिंग लिखा है, सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो करो, 50 जगह देखो ऑनलाइन, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सको। ट्रस्ट मी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी पढ़ाई कर लेंगे, वो आपके जबान पे आएगी, चेहरे पे नहीं। यू कैन स्पीक गुड थिंग्स अबाउट योगा, बट योर फेस विल टेल दैट दिस गाय इज ओनली टॉकिंग अबाउट योगा, ही डजंट प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो ये चीज एकदम गांठ बांध लो। जैसे मेरा हॉबी थोड़ा वियर्ड है, टेकिंग इनिशिएटिव्स था, तो मैंने जैसे ही इंटरव्यू कॉल आया उस दिन से आई स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स। एक दिन मूलचंद चला गया, रेलवे का प्लेटफॉर्म, मेट्रो का प्लेटफॉर्म में जो सटे नहीं होते नौकरी पाए 7,000 रुपए महीने, वो सारे स्टिकर्स आई स्टार्टेड रिमूविंग देम। एक दिन गुड अर्थ फाउंडेशन करके है इन गुड़गांव, वहां चला गया, आई टुक केयर ऑफ कपल ऑफ ओल्ड पीपल। ये सब कुछ करते रहा। प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली छूट गई थी ये चीजें, पर जैसे ही आया तो मैंने परस्यू किया 3-4, ताकि वो, और एक्चुअली एक ने पूछ दिया, सो लास्ट इनिशिएटिव यू हैव टेकन, आई टोल्ड देम दिस, है ना। तो ये चीज जरूर कर लेना। नेक्स्ट है अबाउट आंसर्स। Nobody can or should give answers to your questions. Why do you want to join civil services? Standard answer, do not pick up. कोई कुछ भी बोले, do not pick up. Only pick up your own answers. Even if it is as harsh as earning money through corruption, you pick that answer. Try to sugarcoat it well. I know this is so harsh that it cannot be sugarcoated a couple of times, but still brainstorm more. But only tell your own answers to all opinion-based questions. चाहे छोटा सा भी opinion क्यों ना। हाँ, sugarcoat करना है, नहीं हो रहा है, that you can ask me. I can help you with that. I am very good at it. People know me for that. But trust me, only your answers can sail you through. Other people's answers won't. Last moment में please read Times of India and watch a lot of TV channels, because this is what they keep on doing it, because they all are
very mature people sitting at home, maybe retired, so they read Times of India only mostly, and they watch a lot of good news channels at home. तो वो थोड़ा थोड़ा देखते रहना ताकि उससे कनेक्टेड कुछ पूछ लिया तो बता दें. And you must be having a lot of good friends. Man, what I did is I shared my DAF with couple of my engineering graduates. अब उनको दे दिया और उसके बाद उनसे कहा कि यार अब थोड़ा डिस्कस कर ले, कुछ क्वेश्चंस बना के भेज दे. They formed many questions on the DAF and told me. Okay, so that is it. So whatever, whoever is your good friend, close friend, send your DAF to him or her and tell them to frame questions for you. या तुम्हें देख के क्या लग रहा है, क्या पूछेंगे ये पढ़ के. Let the other person's perspective come to. ठीक है. और इसके बाद कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है. Why civil service? Why this order of preference IS क्यों ऊपर भरा है ना. हॉबी आपकी ये क्यों है, how it is reflected. हाँ, एक हॉबी के बारे में बताया. सी, हॉबी से इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं ये मुझे भी पता नहीं था प्रिपरेशन के टाइम में. बाद में पता चला और अभी पता चला है, मतलब आफ्टर कमिंग इनटू सर्विस इन लवासना ओनली, when seniors started telling about hobbies in Lavasana, senior IS officers, other officers. Hobby is the only thing that decides what kind of person you are. And if a person doesn't have a good hobby in this service or in such services, he will be frustrated all his life. Because the highs and lows of these services is like sky and bottom. So once you are a collector, you are so busy, you have so much to do, you don't have time to take calls of your family, you don't have time to eat also. On the other hand, the moment you get posted as Joint Secretary, Deputy Secretary in Government of India, Deputy Secretary or Joint Secretary in the state in some of the departments, you will not be getting vehicle also, office also, you will not be getting peon, and whole day will go by without a single file coming to your table. Only hobbies can sail you through such tough times. रिटायरमेंट के बाद भी आप अपनी हॉबी के साथ ही जिएंगे. Try to build a hobby and pursue it well, and that actually tells what kind of person you are. Sportsman हो तो spirit दिखेगा, traveling है तो exploration दिखेगा, book reading है तो वही हॉबी है, knowledge दिखेगा. तो हर एक हॉबी जो है ना एक ट्रेट दर्शाता है, इसीलिए हॉबी ढंग से फॉलो करना. There are many questions, इतने साल वेस्ट कर दिया, उसके भी अपने जवाब. Write your own answers, how you have not wasted, how good it was. Previous job, service, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं. Never previous job, future job, other job, service which is low on your preference list. Never talk bad about any such thing. Never ever. सारे सर्विसेज उतने ही अच्छे हैं, सारे previous jobs भी उतने ही अच्छे हैं. I remember one of the guys who was teaching in Bansal classes, he went to the interviews and one of the board members asked him कि why are you leaving teaching? I mean, you will be leaving it, right? So he said कि हाँ sir, actually it is such a boring job, the same topics, same DPPs, same set of subjects I have been teaching, same set of chapters, so it has gone quite boring, so I thought of taking this shot. And then the board member said, is it? I have been teaching in Delhi University for last 60 years. And every other day is more exciting than the last day for me. And for only 1 year you have taught and you feel it is boring. But it's a question on the other side कि 60 साल से कितना बोरिंग काम कर रहे हो. अब वो तो बेचारा बुरा ही मान जाएगा ना. So never ever talk bad about your own past jobs, other services. Always talk high of it. If they say कि अगर वही इतना अच्छा तो यहाँ क्यों आ रहे हो? Sir, everybody wants to go up. Aspirations and contentment are two different things. I'm not sad at that. I'll do my best in what I'm doing. But yes, I do have aspirations to do better. And I personally feel that I can do better in that. If not so, if not given a chance, whatever I'm doing is one of the best things to do in life. And I'm very happy about it. ये मैसेज देना है. ठीक. I think time भी over हो गया है और session भी. If anybody has any question, so we can discuss.
Hi, sir. Sir, I had a question, sir. Yogesh, I think he is raising hand for last many minutes. बताओ योगेश, उसके बाद Anna will come. क्या? सर एक बड़ा ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है सर। मुझे अभी भी पता चला कि कलर ब्लाइंड लोगों को आईपीएस में अलाउ नहीं करते हैं। और सर हालांकि बड़ा ही नैरो डोमेन में है, मेरे को डॉक्टर ने बताया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ही कंप्लीट टेक्निकल विड्रॉल है। तो सर, तो क्या मैं आईपीएस भरूं भी? इज इट वर्थ टिकिंग दैट बॉक्स फिर मैं, या फिर पूरी तरह से ही छोड़ दूं? नहीं, तुम तो भरोगे ही ना। तुमको कौन बोला अभी कि कलर ब्लाइंड हो? सर मतलब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है उसमें मुझे नहीं, तो पता चला तुम्हें तो थोड़ा। भर ही देना है ना। वो मेडिकल नहीं, वो समझेंगे। दैट्स देयर जॉब, दैट्स नॉट योर जॉब। ओ ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। एक्सप्लिसिटली नहीं बताना है भाई। ऐसे पूछेंगे खांस रहे हो, खांसी हुई है? नहीं सर, दमा है। ये सब नहीं करना है भाई। इंटरव्यू में आराम से मजे में जाना है। तो उनको थोड़ी पता है। यू फिल व्हाट यू वांट टू, लेट देम रिजेक्ट यू। ठीक है। ऑलराइट सर, एक और हाँ छोटा सा क्वेश्चन था सर। हाँ, मतलब सॉरी सर, मेरी हॉबी सर वो कॉलेज से ही परस्यू कर रहा हूँ सर, लिंग्विस्टिक्स। लेकिन सर वो बड़ी टेक्निकल सी हॉबी है, और सर जब प्रेप चल रही थी तब इतना ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की उसके बारे में। और सर एक आध जगह से ऐसे आया था, ओपिनियन आया था कि बहुत टेक्निकल हॉबी है, कहीं फंस जाओगे। तो सर मैं जानना चाहता था कि क्या टेक्निकल हॉबीज इस तरह की भी लिख सकते हैं सर, क्योंकि वो सच्ची में मेरी हॉबी है सर। क्या है, फिर से बताओ। सर लिंग्विस्टिक्स सर, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, तो लिंग्विस्टिक्स। हाँ, तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। कुछ काम कर लो उस पे। ऑलराइट सर, वेयर तो आर सर यू फ्रॉम? सर पंचकुला। पंचकुला। क्या है वहाँ का लोकल डायलेक्ट? क्या है डायलेक्ट लैंग्वेज? सर एक्चुअली क्रियोल है सर, जो कि अलग अलग भाषाओं जहाँ पे मिलती है। स्क्रिप्ट है? नहीं सर, उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मस्त है डायलेक्ट है। तुम्हारे पास। मेरे मेरे इंटरव्यू में एक बार हुआ था। मेरा कोठा है तो मेरा स्क्रिप्ट नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में चला गया। तो मैंने ऐसे कुछ कुछ काम भी कर लिया था। एक आध कोठा राइटर से मिल लिया था। वो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी। तो मैंने भी थोड़ा उनका असिस्टेंस दिया था। तो यू कैन से कि सर मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा डायलेक्ट ये है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरे अपने डायलेक्ट का स्क्रिप्ट नहीं है। तो मेरे को थोड़ा लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ गया। तो वहां से आई पिक्ड इट अप। एंड माई मोर फोकस हैज बीन ऑन दिस ओनली। अब सिर्फ अपना वाला ठीक से कर, जो तुम्हारा अपना डायलेक्ट है उसको। ठीक है। ऑल्दो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट, बट आई गॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट। So although it's a very recent hobby, I have not researched much about it, but this interest has come very recently, and I believe that I want to do good in it. If I am able to write a script with the help of other authors for my own language, I believe I will be able to contribute more to other languages too through my hobby. Very recent hobby है, इसीलिए बहुत कुछ नहीं किया है, बट इंटरेस्ट मुझे यहाँ से आया था। दैट विल शो कि कितना जुड़ाव है तुमको अपने सरजमीन से, और कितना प्यार है टाइप है ना। दोज इमोशंस शुड कम इन हॉबी। कोई आंसर नहीं है ना, व्हाट आर द डेटा ऑफ लिटरेसी, ये नहीं है ना। हॉबी इज इमोशन, दैट शुड कम ऑन योर फेस। थोड़ा कर लो, उस पर दिख जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। थैंक यू सो एना, मच। हाँ, कोई somebody was asking, some girl was asking. Sir, Yeah. yes, sir. Good evening, sir. Firstly, I'm sorry, वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ ब्रॉडबैंड का इशू है यहाँ पे। हाँ, बताओ। थैंक यू। हाँ सर, दो क्वेश्चंस थे। एक तो अबाउट होम स्टेट। सो ओरिजिनली माय पेरेंट्स आर फ्रॉम झारखंड, बट आई हैव बीन born, आई मीन राइट आफ्टर बर्थ आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब दिल्ली से ही हुआ है, एंड आई रियली डोंट नो मच अबाउट झारखंड। तो होम स्टेट मुझे क्या फिल करना चाहिए? होम स्टेट क्या फिल करना चाहिए? तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है? झारखंड कार्डर लेना चाहते हो या अगमुट लेना सर चाहते मेरा सर मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विसेज सर। हो? अच्छा, तो होम स्टेट कुछ भी भर दो फिर तो। मगर बिकॉज सर उसके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, सो आई वाज वंडरिंग दैट व्हाट शुड बी फिल्ड एंड वेदर इट विल बी एन इशू कि बिकॉज उसमें डैफ 1 हैज दैट कॉलम वेयर यू हैव टू फिल कि आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं। सो इफ आई फिल डिफरेंट थिंग्स, तो वो इशू तो नहीं होगा, जबकि आई मतलब इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स वी लिव्ड इन दिल्ली ओनली सिंस माय इसका बर्थ। इसका दो चीज है इसमें। एक हाँ। कि आप किस स्टेट में कंफर्टेबल हो आंसर्स देने में, आप वही चुनो, है ना। और प्रिपरेशन का टाइम आपका किसको है? बोले क्या दवा है पेट दर्द वाला? हेलो, हाँ, तो आप पहले ना यस एक सर। बार कंफर्टेबिलिटी चेक कर लीजिए अपना कि किस स्टेट के लिए आप आंसर्स अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। राइट। उसके बाद प्रिपरेशन शुरू कर दो, और जो आप प्रिपेयर ढंग से कर सकते हो उसी को अपना होम स्टेट डाल दो। क्योंकि अभी यस सर। आपके पास दोनों 50-50 ऑप्शन है ना। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, तो डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन।
आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि मतलब एक ओपिनियन, मतलब आई होप कि बोर्ड को तो प्रॉब्लम नहीं होती है ना, दैट इफ योर पेरेंट्स आर फ्रॉम समवेयर एल्स एंड योर होम्स यू हैव रिटन अ होम स्टेट व्हिच इज डिफरेंट। नहीं 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 तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था हॉबी के बारे में। सो रीडिंग इज माय हॉबी, बट रीडिंग के विद इन मेरा स्पेसिफिक, लाइक आई लाइक रीडिंग हिस्टोरिकल फिक्शन एंड क्लासिक्स। तो हॉबी में क्या मुझे वो स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए या फिर जस्ट रीडिंग मेंशन करना चाहिए? Depends. Do you want questions from other aspects of reading or not? Do you? सर आई वोंट माइंड, क्योंकि थोड़ी आई डू रीड, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो उसके भी ऊपर जो लेटेस्ट लिखा जा रहा है रीड दैट। हाँ तो फिर लेकिन जनरल लिख के छोड़ दो। लेकिन सर अगर वही लगता है, लाइक अ फ्यू पीपल टोल्ड मी कि दे कैन आस्क, मतलब इफ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो एक ऐसी बुक के बारे में दैट आई हैव नॉट रेड, देन व्हाट वुड इट बी तो लाइक? बता देना नहीं पढ़ा है, सॉरी सर आई हैव नॉट रेड इट। मतलब आई शुड नॉट मेंशन द स्पेसिफिक? नहीं जरूरी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई हैव नॉट रेड इट। दुनिया में इतनी किताबें हर किसने पढ़ रखी है। अच्छा, बट मेंशन नहीं करना चाहिए स्पेसिफिक, दैट यू नो If स्पेसिफिकली। you want questions from other aspects also, you should not. You can tell them, they will definitely ask you क्या genre है आपका reading का. Then you can tell them कि although historical fiction I like reading, but I'm also into economics since it's my optional too. Because of interest only I took economics. I have been reading about economics since my school days, and I like it a lot. So I do read economics as well. So let them ask questions from both. ओके, ठीक है सर, हेलो थैंक यू सर। सो मच। हाँ हेलो सर, देवेश चतुर्वेदी है। हाँ बताओ। सर मेरा एक डाउट था सर, आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड एज एट द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन उत्तर प्रदेश। और सर मेरे को सर्विस प्रेफरेंस में डाउट आ रहा है कि सर मैं आईएएस आईपीएस के अलावा आईआरएस और कस्टम्स एक्साइज डालूं कि ना डालूं? यार ये तो मतलब सर आई डोंट वांट टू लीव एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीज है, बट सर वो है कि आईआरएस अगर मतलब जैसे हमारे बैच में भी सर लास्ट ईयर जो हम लोग के सीनियर थे उसमें सर कई लोग का सिलेक्शन हुआ था बट दे डिडंट गो फॉर आईआरएस। तो सर मेरे को सर्विसेज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट मेरे को मेजोरिटी लोगों ने बोला है कि यू शुडंट लीव एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इसी के लिए सब लोग आते हैं। तो सर ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। यार देखो देवेश, वैसे डीसी लिखा हुआ था मैं तो डर ही गया पर ठीक है। तो देश एक बात समझो है ना, जी सब सर। लोग तो क्या बोलते हैं वो किस कारण से बोलते हैं वो अलग अलग होगा ना। किसी को पावर मजा जी। आता है, किसी को गाड़ी जी चाहिए, सर। किसी को बॉडीगार्ड जी चाहिए, सर। है ना। तो मेरा टेक हमेशा से इसमें यही रहा है, सभी को एटलीस्ट 10 to 20 pages about why do you want to do this. That will give you a very clear understanding of which service is good for you, which is not. ओके सर। मैंने कभी स्टेट दिया ही नहीं, आईआरएस मेरा मैंने ज्वाइन किया ही नहीं। मेरा था कि या तो मैं, और अगर नहीं हुआ तो मैं क्रॉस सब्सिडी मॉडल पे हॉस्पिटल और स्कूल खोलूं। अच्छा सर। वो मुझे ऐसे बनाना था तो मैं छोड़ देता। मैं तो आईआरएस सर इनकम टैक्स भी तो सर मेरे को आईआरएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग इट सर मैं भरना चाह रहा था। बट सर वही बोले कि तुम्हारे जो काम कर रहे हो और जो तुम डैप पे भरोगे उसमें कोहेरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज इफ यू वांट टू गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें भरो, तो आईआरएस भरने कोई मतलब नहीं है सर। ऐसा क्या लगा है वो खुद से क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं सर, मतलब मुझको समझ में नहीं आ रहा है सर आईआरएस भरना चाहिए कि नहीं, मतलब मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उस सर्विस में क्या होता है। एक बार किसी सीनियर आईआरएस ऑफिसर से मिल लो। अच्छा सर। तो अपना काम क्या है, आईआरएस के Okay, ऑफिसर्स आपके एयरपोर्ट में होगा, जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ कस्टम एक्साइज के लोग बैठते हैं, है ना। कुछ Okay, और भी से एक बार मिल लो। और बाकी मेरा तो टेक हमेशा से यही रहा है, वो सभी के लिए है। प्लीज थिंक अबाउट इट, तुम्हें क्यों करना है, नौकरी ही क्यों करना है, झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगा, वो यस बिहाइंड द सीन आपको पता चल जाएगा ना, तो फिर आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आईएएस करने का आईपीएस करने। जैसे मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं था, मैं रिजाइन करने को तैयार हूं और मैं आज भी रिजाइन करने को तैयार हूं। जिस दिन मुझे लग जाए कि मुझे जो करना है इस नौकरी में नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ के अपना सोशल सर्विस करना है या जो भी करना है, मेरा जो चोरी करना है। ओके सर, थैंक यू सर। वो एक बार ना बैठ के सोचो यार, मतलब ये ना कोई बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या शहद है यार, बेकार है। कल को एफआईआर तुम्ही को होगा, आईआरएस पे एफआईआर कभी हुआ है? नहीं सर।
तो वो हर आदमी का अपना अपना टाइप है, मतलब वो जज नहीं कर सकता है ना। वो सोचो भोकाली के लिए करना है तो यूपी में वीडियो भी बड़ा ही बात है ना। जी सर, जी सर। सर एक्चुअली कोई बड़ा बात नहीं है ना, तो सर भोकाली करना तो अलग बात है ना। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? sir, actually I wanted to know, I wanted to write console gaming as one of my hobbies. So will it be right to write console gaming and will it not like look bad on my end? आयुष देखो, हर एक बार ना, जैसे हॉबी इज ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है, एंड दे विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स दैट कि व्हाट हॉबी इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर पर्सनालिटी। Okay sir. मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं तो इट इज गिविंग मी विनिंग स्पिरिट, इट इज गिविंग मी हेल्थ, इट इज कीपिंग मी फिट, इट इज कीपिंग माय ब्रेन ब्राइट, है ना। अब मेरे 15 बैच के बैचमेट से मिलोगे तो सब मेरे से 15 किलो ज्यादा जरूर है ना। तो वो क्या है कि दैट shows what you are and how you are, है ना। तो अगर किसी का रीडिंग हैबिट है तो दैट शोज कि इसका नॉलेज अच्छा होगा, he can take calls on the basis of knowledge। तो आंसर आपके क्वेश्चन का ये है कि if you are writing console gaming, it is good only if you are able to write 1 or 2 pages on it, how it is actually helping you build yourself better, and that may contribute in the services you want to join. Sir, my other two hobbies are like basketball and football. And in basketball, I even went on to play for nationals also. I went on to India trials. So I think they will compensate. So will the console gaming will be able to basketball and football be able to compensate the console gaming, or should I drop it altogether? दोनों अच्छा है, तीनों अच्छा है। तुम्हारे पास तीनों का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तुम ऐसा कॉम्पनसेट करना चाह रहे हो इसलिए कि कंसोल गेमिंग को नेगेटिवली देख रहे हो, वो मत करो। बास्केटबॉल एक अच्छा है सर तो एक खराब वाला तो चलेगा, समथिंग लाइक दैट, वो मत करो, है ना। ये करो कि कंसोल गेमिंग में अच्छाइयां क्या है which you can write. So sir, one more thing, my optional is psychology. जैसे I'll tell you, जैसे you can say कि this increases my reflex, है ना। Yes sir. या it gives me a very good perspective, Okay, है ना। okay sir. ना वर्चुअल वर्ल्ड में मैं रहने लग जाता हूँ, जो भी है मतलब। One of the thing I can, my optional is psychology, and I thought that with console gaming I will be able to connect the role of media, which I am like well prepared in psychology as well. So there is one chapter on role of media in pro and anti-social behavior. So will it? Sure, can do it definitely. हाँ. Any other question? Yes, सर मेरी एक्चुअली एक ही हॉबी है क्रिकेट मेनली, और कोई मैं लाइक टाइम ज्यादा मिलता नहीं है बाकी चीजों के लिए, तो मैच वगैरह देख लेता हूँ मैं जैसे ज्यादातर, या खेल भी लेता हूँ। तो इसमें क्या एक हॉबी इनफ है क्रिकेट से? हाँ, क्यों नहीं, इनफ है, मोर देन इनफ है यार। मतलब मेरी तो हॉबी नहीं थी कुछ, मैंने टेकिंग इनिशिएटिव्स लिख दिया था। कई लोग खाली भी छोड़ देते हैं। Just because there is no hobby, that doesn't mean you are not a good person. I can tell कि yes, I don't have any hobby. I'm a very busy person. Whatever I get, that becomes my hobby. When I started preparing, UPSC preparation is my hobby. When I started working as IAS, IAS is my hobby. When I started preparing for marriage, marriage became my hobby. कोई जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब वो तुम बोल सकते हो ना कि whatever I do, that becomes hobby. What is hobby? जैसे मुझसे पूछा what is your hobby, तो देखा अरे ये क्या बकवास लिखा। मैंने कहा सर for me hobby is a productive wastage of time. दूसरे ने टोक दिया, अरे very interesting definition man, where did you get that? अच्छा tell me how people waste time unproductively. Then I went on to social media, then I went on to chit chatting, you know, and then he said कि अच्छा तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए? बोले नहीं सर, there should be time limit. अभी IIT बॉम्बे ने किया था कि रात 9 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाएगा हॉस्टल्स, so that people can interact with each other in person. उस समय हुआ था ऐसा, तो समझ आ रहा है बात। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिजिड रूल्स नहीं है ना। और एनी अदर एक चीज और सर झारखंड, उड़ीसा और बिहार में सर कैडर वाइज अगर देखें तो कौन सा ऊपर नीचे रखना चाहिए हमें तीनों में? झारखंड, उड़ीसा, बिहार। यस सर, तीनों की क्या करना लाइफ में, क्या करना उस पर डिपेंड करेगा। क्या करना चाहते हो, कहाँ से हो? मैं सर हरियाणा से हूँ बेसिकली। अच्छा, तो बाद के प्रेफरेंसेस होंगे ना तुम्हारे ये तीनों? हाँ मतलब बात के हैं सर वैसे। झारखंड, बिहार, उड़ीसा। या देखो मेरे हिसाब से तीनों ही ठीक है, मतलब तीनों ही बराबर है। सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, देखो है ना। यू कैन नॉट जज एनीथिंग लाइक दैट। तो देख लो कि तुम्हारे मतलब
जैसे बिहार हैज गुड थिंग कि अभी पॉलिटिक्स वहाँ अच्छा है तो स्टेबिलिटी है थोड़ा, ठीक है। उड़ीसा हैज गुड थिंग कि वहाँ तो ह्यूज लेवल ऑफ स्टेबिलिटी है, तो ब्यूरोक्रेटिक लेड गवर्नमेंट होता है, तो काफी पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है वहाँ। और उसके फॉल बैक्स भी अलग टाइप के हैं कि वो कभी नेशनल पलट पे नहीं आता है, वो अपने ही अलग ही टाइप से चलता रहता है। झारखंड का है कि बीच बीच का है, बहुत अनस्टेबल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो रहता है, पॉलिटिशियंस इतने मैच्योर नहीं है, हर बार सीएम ही अपनी सीट हार जाते हैं, तो उतना ज्यादा मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है, तो उतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड बहुत ही एरेक्टिक और बहुत फ्लिमजी टाइप का है, 6-6 महीने में कलेक्टर बदल जाते हैं। तो ये मतलब अलग अलग के अलग अलग फायदे और नुकसान है। आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज इट, यू डू योर ओन रिसर्च, मे बी टॉक टू पीपल हू बिलोंग टू। मेरे हिसाब से तो तीनों मदरलैंड है, तीनों में कहीं मिलेगा तो अच्छा है। बताओ और कोई? Sir, in the morning session, sir, you talked about three prong approach: legal, institutional, and social engineering. Sir, जैसे मैं MNC में काम कर रहा था, तो the panel member asked in the interview that your big four MNCs exploit people by long working hours and all that. तो इस केस में हम social engineering तो लगा नहीं सकते. तो how we will go that extra mile की इन दो approach के अलावा legal and institutional, other than what we can do as an employee, what can I do? अगर MNCs work कर रहे हैं, लंबे hours कर रहे हैं, less pay कर रहे हैं. अच्छा, उसके लिए वो तो लीगल ऐसे नहीं है, तो क्लब्स का कॉन्सेप्ट ला सकते हो, मतलब जैसे विद इन द इंस्टीट्यूशन क्लब्स बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ व्हेन आई वाज वर्किंग इन ओरेकल, तो वहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे क्लब्स थे। एक टोस्ट मास्टर्स क्लब हुआ करता था, जिसमें हम लोग स्पीचेस देते, तो वहाँ काफी इनफॉर्मल डिस्कशंस हो जाती थी। तो उसमें सीनियर मोस्ट एचआर भी आता था, तो उसके सामने हम लोग अपने स्पीचेस में, टोस्ट मास्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि यू लर्न हाउ टू गिव स्पीचेस, हाउ टू डिबेट, हाउ टू टॉक इन पब्लिक। तो हम लोग अपनी स्पीचेस में अपने ग्रजेस लिख के बोल देते थे एचआर के सामने एज अ फन थिंग, तो उसको पता चल जाता था कि यार फ्राइडे मीटिंग बहुत बेकार होती है, सब मजे ले रहे हैं इसके टोस्ट मास्टर्स क्लब में। तो ये थोड़ा सा ह्यूमरस वे था, बट ऐसे छोटे छोटे क्लब्स, छोटे छोटे सिविल सोसाइटीज टाइप के ऑर्गेनाइजेशन विद इन बना के कर सकते हैं, दैट कैन बी वन वे। बाकी तो मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे एक्सटर्नल कंट्रोल इज नो वे पॉसिबल, इतना तो मतलब नहीं मालूम है ना। Sir, hello. Sir, hello. Friends, I would like to moderate in between. Ranjan sir, I'll just moderate because there are a couple of voices coming up forward. Manish Kumar Jha, please go ahead. Yes sir. Sir, मेरा हॉबी है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और उनको खिलाना दुलार करना। तो मुझे इसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं डेप्थ में इसे कैसे लिखूं? Spending time with kids. Yes sir, यही लिख दूं? हाँ। और सर इस पे फिर क्वेश्चंस क्या बनेंगे? मतलब अगर तुम्हें इंटरव्यू में, मतलब उनके इंटरव्यू बोर्ड के, तो ECC लिख सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। थोड़ा टेक्निकल होगा बट पूरा अच्छे से पढ़ लेना। तो तुम्हें पूछेंगे क्यों हुआ ये तुम्हारा इंटरेस्ट। सर हमें स्पेंडिंग टाइम विद किड्स, तब मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा मजा आता था, तो मैंने सोचा यार जब अच्छा लग ही रहा है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो क्यों ना इनकी साइकोलॉजी समझें, क्यों ना ये समझे कि इनके लिए क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग इनका चाइल्डहुड केयर कैसे बेटर हो सकता है इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो मैंने ऐसे 2-4 स्टार्टअप्स देख लिए जो मतलब बिलो 6 एज ग्रुप के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान चला गया सर, तो वही इंटरेस्ट हो गया। बेसिकली आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स, सो when I started doing that, I thought let's make it productive, so I started doing early childhood care and education. थोड़े मजे लेने हैं और प्रिपेयर कर सकते हो मन लगा के, दिल लगा के, तो ऐसे लिखोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। बाकी फन के लिए तो बच्चों के साथ स्पेंड करने का तुम्हारा वो नहीं आ रहा ना, मतलब कि why, how this is going to help you as a person or IS as a service. Right. Okay sir, thank you. Vijay Raghav Goel. हेलो सर मेरे को हॉबी के बारे में पूछना था। मैंने जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैं एक कंप्यूटर विजन एंड ग्राफिक्स करके एक कोर्स होता है, तो उसमें मेरे को काफी इंटरेस्ट था। तो मैंने इन माय कॉलेज लाइफ उसको काफी परस्यू किया है, उसमें रिसर्च भी की है, लेकिन आफ्टर कॉलेज में डायरेक्ट सिविल सर्विसेज में आ गया हूँ और पिछले 3 साल से मैंने इस चीज को कुछ परस्यू नहीं किया। तो इसको मैं हॉबी में लिख सकता हूँ क्या? मेरे को इशू ये आ रहा है कि ये एक हॉबी नहीं रही, मतलब हॉबी मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ऐसी चीज है जो आप खाली बैठे हो तो करते हो, लेकिन ये एक टेक्निकल चीज है जिसमें आप ऐसे ही खाली बैठे आप नहीं कर सकते हो। तो ये अभी एक सेकंड, कॉलम जो है यूपीएससी वाला उसमें हॉबी/इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना? यस सर, /इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो मैं बस वो सोच रहा हूँ ये कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए कि हॉबी को मान ले इस चीज को। सर ये मेरा इंटरेस्ट रहा है,
बट कुछ सालों से आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा थोड़ा बीच में देख लेता हूँ, और अभी देख लेना कुछ कुछ। अच्छा अच्छा, ओके सर। अदरवाइज कुछ अच्छा है तो यू कैन राइट दैट डाउन टू। ओके, थैंक यू सर। हर्षल महाजन प्लीज। Harshal? Hello. Yes, sir. Sir, actually, my hobby is stargazing, but it's actually really factual subject, and I have not done it since civil services, and I don't think if I have complete time to like revise all the star positions. So can I just answer? I don't know, and then about my hobby, like, will it be good? Do you actually do it? Yes, I do it. I used to do it in college almost every day. अभी like civil services के वजह से like whenever I go out and travel तभी ही करता हूँ. थोड़ा वर्क कर लो, मतलब महाजन जो भी है थोड़ा वर्क कर लो, है ना, फिर अदरवाइज तो इट विल बी वेरी टफ टू जस्टिफाई इट, है ना। थोड़ा वर्क मेरे पास एक्चुअली उसके लिए एक्वलेट्स भी है काफी, सो लाइक मेरा इंटरनेशनल ओलंपियाड्स वगैरह उसमें भी था मैं एस्ट्रोनॉमी में, तो आई एम गोइंग टू राइट दैट एज वेल, प्लस आईआईटी में भी लाइक क्लब वगैरह उसमें भी मैं था। यू शुड राइट इट। देखो हमेशा ये सभी के लिए एक मैसेज है, देखो हॉबी ही है तो जरूरी नहीं है कि उसमें जितने सवाल आ रहे हैं सबके जवाब तुम्हें आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हॉबी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अब किसी का पेंटिंग हॉबी है तो ये हो जाएगा, क्या था वो, हुसैन हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। किसी का म्यूजिक हॉबी है तो मोजार्ट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है ना। यू कैन स्किप क्वेश्चन कि सर अभी रिसेंटली काफी टाइम से नहीं किया तो ये चीज तो मुझे नहीं याद है। अब किसी का हॉबी था उससे पूछ लिया कि 78 में एक बहुत फेमस रेडियो जॉकी का मर्डर हो गया था, नाम याद है? अब बेचारा अभी सुन रहा है रेडियो, 78 में कौन मरा क्या पता, वो मैडम के जमाने का होगा, सर के जमाने का होगा, जब सर जवान थे तब, इसको बेचारे को थोड़ी पता है। तो बेचारा बोला नहीं मालूम। अरे कैसे नहीं मालूम, तो बहुत फेमस था उस जमाने में, सबसे फेमस था। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर्स पता हो, पर जो मैं बार बार बोलता हूँ, you should be able to connect your hobbies with your personality traits that can actually be useful in your life, in your education, in your work. That's it. वो चाहे कितना भी घटिया हॉबी हो। ठीक है, नेक्स्ट। Okay. Akarsh? Last year I wrote an achievement section, research paper on Satchitanand, but मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं उसे खाली छोड़ दूँ, तो can we leave a section blank? Yes, that you is can. achievement. Definitely you can. Okay sir. Sir, one more small question. I have two hobbies related to edtech. एग्जांपल दे दो, जैसे मेरा स्पोर्ट्स सेक्शन खाली था, अभी मैं खेलने लग गया हूँ आफ्टर लबासना, पर उससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं पकड़ा था, बैट भी नहीं पकड़ा था लाइफ, मेरा पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन खाली। तो उन्होंने उससे एक्चुअली पूछा ये सेक्शन खाली, खेलते खेलते नहीं हो? नो सर, सॉरी सर, आई हैव नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू। तो ही सेड कि अरे तो फिर तो whatever traits an sports person has which is so good for a good life and good administrator, you will be missing that. I said no sir, I will respectfully and humbly disagree with that, because sir I have been because I have been a startup guy. I have done a couple of startups in my life, and whatever traits one gets from being a sports person, I have got being a man of startups, like winning spirit, teamwork, never die. Hello. Hello. Yes, please go ahead. Am I audible? Yes, who's that? Arpit? Yes, sir. Arpit, I think there's some connectivity problem with Sir's end. Can you hear Sir's voice? I cannot. No. I am not able to hear, sir. Okay. So let's wait till the time Sir gets connected. Okay, sir. All please stand by till the time Ranjan Sir gets reconnected.
sorry guys. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Now sir. you're back, sir. Sorry guys, नेट डेटा बंद खत्म हो गया था इंटरनेट का. हाँ Sir, I could hear you till the qualities of startup, winning and team spirit. हाँ, तो बस वही है. तो मतलब if you have left a blank space, try to think इससे क्या पूछ सकते हैं. जैसे मुझे पता था मैंने खाली छोड़ा दिए, पूछेंगे ही पूछेंगे, तो मैंने पहले प्रिपेयर करके रखा था. मैं स्टार्टअप घुसा के, और सारे ट्रेड्स जो एक स्पोर्ट्समैन में होते हैं, वो सारे ट्रेड्स एक स्टार्टअप गाय में होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर में होते हैं, वो मैं बोल दूंगा. और चूंकि मैंने स्टार्टअप्स कर रखे थे 3-4, तो आई हैड द बैकिंग अप. तो अगर कुछ खाली छोड़ रहे हो तो यू शुड हैव अ बैकिंग अप टू आंसर. वही डैफ का जो प्रिपरेशन मैं बोल रहा था, वो पूछ सकते हैं ना ये खाली क्यों है. देन यू हैव समथिंग कॉन्क्रीट टू टॉक अबाउट. नहीं सर ऐसे ही खाली छोड़ दिया, कुछ था ही नहीं सर, तो क्या करते. ये सब नहीं करना है. ठीक. हाँ, नेक्स्ट. Anna Sinha. Yeah, thank you, sir. Sir, my question was that internships के बारे में था, that I have done internships with the Ministry of Commerce, BRICS and all of these places. But ये mention कहाँ पे कर सकते हैं? Because columns सारे या तो extra curricular के हैं, या prizes and medals के हैं, या leadership positions के हैं. So where do I mention that, sir? मत करो मेंशन, वो पूछ लेंगे तो बता देना. Some people say कि job के section में आप mention करिए. पता नहीं कितने महीने का इंटर्नशिप था. सर डिफरेंट था, मतलब for 2 months था, for 4 months था. मैंने ISI के भी साथ किया है. So that was a whole research project by Planning Commission that went on for 6 months. तो एक तो आप फिर जॉब सेक्शन में कर सकते हो, ये 6 महीने वाला तो कर ही सकते हो. अच्छा सर. हाँ. और जो शॉर्टर पीरियड्स का है उनका क्या? तो मेरे हिसाब से क्या है ना कि यू नीड टू डायरेक्ट योर इंटरव्यू, है ना. यू नीड टू बी द डायरेक्टर ऑफ अ मूवी. इट्स अ मूवी बेसिकली. And you can only be a director when you are confident about each and every part of the script. So what you are writing in the DAF, that should be written जिसके बारे में तुम extremely confident हो. और अगर वो 2 महीने वाले में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कई बार होता है ना कि हम 6 महीने इंटर्नशिप किए कुछ नहीं सीखे, और 2 महीने में बहुत कुछ सीख लिया, तो जिसमें तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना, वो स्क्रिप्ट करना है. बाकी इट्स योर कॉल, है ना. समझ आया बात. अभी 6 महीने में कुछ नहीं सीखा, ये हो सकता है ना, फालतू डिपार्टमेंट था, बॉस अच्छा नहीं था, और 2 महीने में बॉस इतना अच्छा मिल गया कि बहुत कुछ सीख लिया, तो 2 महीना मेंशन करना है. इट्स योर कॉल. बट द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू that whatever you mention, you should be highly confident about whatever is being asked. You are able to answer it. That's it. Right. With So an it with an element of telling them subtly that how it will help in administration. Subtly, explicitly नहीं हर आंसर में बोलना है कि मैं ये सर मेरे में है, अगर आइस बन गया तो वो कर दूंगा टाइप, ये नहीं, लेकिन subtly अगर हो सके तो ठीक. हाँ, तो मतलब सर ये basically it can be mentioned in the job section. job, yes. Not in extracurricular. नहीं. And sir about sports, can brisk walking be mentioned in the sports section? नहीं, I don't think so. It can be a hobby, but it cannot be sports. Okay. Okay, sir. Thank you. Ashish Ranjan. Sir, good evening, sir. Ashish Ranjan here. Sir, I love teaching. So can I mention it as my hobby? Wonderful, yeah. What better can be than teaching? Definitely. Thank you, sir. Nothing is better than teaching, trust me. Okay, sir. Pratish. Pratish, please go ahead. Pratish, you are not audible. Pratish. Hello. हाँ, या बताओ. Hello. Yeah, you are audible. Tell me. Yes. Sir, am I audible? Yes, Pratish, go ahead. Sorry, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आपकी साइड से आवाज कम हो गई है. Pratish. सर मैं ये पूछ रहा था कि आई एम ए वर्किंग पर्सन, तो जैसे मेरी 3-4 हॉबी हैं कि लिसनिंग टू म्यूजिक, गार्डनिंग, वॉचिंग क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग. और सर मैं इसको परस्यू ऐसे करता हूँ कि जिस समय मुझे टाइम मिल जाए. तो जैसे कि मेरी गार्डनिंग है, तो मुझे वीकेंड पे टाइम मिलता है तो मैं वीकेंड पे गार्डनिंग कर लेता हूँ. और गाने सुनने का शौक है तो मैं मॉर्निंग में सुन लेता हूँ. और जब टाइम मिलता है तो क्रिकेट, अगर कुछ टीवी में देखना है तो मैं क्रिकेट देखता हूँ. और इसके अलावा सर अगर कभी छुट्टी मिल गई
थोड़ा स्ट्रेच में, तो फिर आई लाइक टू ट्रैवल। तो क्या 3 से 4 हॉबी लिखना ठीक रहेगा? नहीं, ये एक नहीं। तो है ना कि यू शुड प्रायोरिटाइज देम, कौन सा चीज इसमें बेस्ट लगता है। मतलब ऐसा सोचो, जैसे कई बार लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि यार अगर मतलब 4-5 चीजें करते हैं तो कौन सा लिखें या सारा लिखें। दूसरे टाइप के लोग हैं जिनका कुछ नहीं, अरे हम तो कुछ करते ही नहीं है अपना काम के अलावा। तो ऐसे लोगों को मैं एक ऑप्शन देता हूँ, यू आर ऑन एन आइलैंड, यू हैव ऑल द एमिनिटीज, टेल मी व्हाट विल यू डू। यू डोंट हैव एनी एस्पिरेशन इन लाइफ, कुछ करना नहीं लाइफ, क्या कौन सी चीज है जो तुम करना चाहो, उसको लिखो और उसको परस्यू करो अभी जितना भी टाइम। अगर गार्डनिंग हॉबी लिख रहे हो, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं बिना बोर हुए लगातार 1 महीने तक गार्डनिंग कर सकता हूँ, तो गार्डनिंग लिखो और उसको परस्यू भी करो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो उसको लेके। और अगर लगता है कि नहीं ये तो बस कभी कभी करने के लिए ठीक है, तो फिर कोई पॉइंट नहीं। देखो ज्यादा चीजें लिखने से ना, वही जो मैं आई वाज टेलिंग द अदर पर्सन एना, दैट राइट एज मच एज यू कैन डायरेक्ट। इतना स्क्रिप्ट लिख दोगे जिसका डायरेक्शन ही नहीं है। अब देखो 4 चीजें लिखोगे, कोई एक गार्डनिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई एक क्रिकेट में एक्सपर्ट होगा, 6 बोर्ड मेंबर है, 5 बोर्ड मेंबर है, कोई एक बहुत ट्रैवल करता होगा। इतने क्वेश्चंस आएंगे ना, तुम बेचारे पड़ जाओगे। ठीक है सर। तो वो ना एक ऐसा दर्शाएगा कि ये यार कंफ्यूज टाइप का आदमी, जिसको अपना हॉबी ही नहीं पता, कुछ भी करता रहता है, ये काम कैसे सिंसियरली करेगा, फोकस्ड होगा। इट शोज दैट यू लैक फोकस ना, तो वो चीज नहीं दर्शानी। ठीक, नेक्स्ट योगेश, ठीक है यस सर। सर आपकी इंटरव्यू के प्रेप के टाइम पे सर आप ग्रुप स्टडी ज्यादा किया करते थे, जैसे आप, या फिर आप ऐसे करते थे कि रिसर्च के टाइम पे खुद का कर लिया और फिर बस डिस्कशंस कर लिए, या फिर आप शुरू से ही ग्रुप स्टडी कर रहे थे सर जो इंटरव्यू के टाइम पे कैरी? इंडिविजुअल स्टडी, लेकिन जो हेल्दी डिस्कशन करने के लिए कोई बंदा है अगर, तो हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट मोस्टली इंडिविजुअल स्टडी कर रहे थे। बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर राइट, जो अच्छा दोस्त उससे फोन पे बात करके अच्छे से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, बाकी अच्छा चीज। नेक्स्ट आकाश नायक। Hello, sir. Good evening. Evening. Sir, I have two questions. First of all, sir, I belong to Jharkhand. I'm from Dhanbad. So, sir, what aspects of Dhanbad and Jharkhand should I prepare, and if possible, then can you guide me to some source? And secondly, sir, sir, among my hobbies, I have a keen interest in following startup and business strategies and tech-based news. So should I mention them as one of my hobby, or should I leave it out? अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि देयर आर मेनी बुक्स रिलेटेड टू झारखंड। एक सत्यानंद की सत्येंद्र करके एक बुक है, वो ले लेना, मोटी सी है, ग्रीन कलर की। इसके अलावा गूगल इट अप एज मच एज यू कैन। मे बी आज से ही झारखंड को, झारखंड ही नहीं बाकी स्टेट के भी लोग हैं, सबके लिए ये है, आज से ही ना अपना गूगल न्यूज में अपने स्टेट को फॉलो कर लेना। तो आज से ही तुमको अपने स्टेट का न्यूज आने लग जाए। अब छोटा सा भी न्यूज आएगा, उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आता रहेगा, समझ रहे हो? यू विल बी एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्टेट। तो एक ऐप है, पब्लिक ऐप कुछ करके नाम है, विच इज अ वेरी लोकल ऐप। वो भी डाउनलोड करके अपने अपने स्टेट के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट डाल दो उसमें, तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के न्यूज उसमें आती रहेगी। ये बहुत जरूरी है, ये मैं भूल गया था सेशन में बताना, बट एवरीबडी शुड डू इट। एक तो ये हो गया। अबाउट धनबाद जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कोल माफिया रिलेटेड हो, चाहे कोल माइनिंग रिलेटेड हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड हो, चाहे कोल बर्निंग रिलेटेड हो, इलीगल माइनिंग रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस लिख लेना। रिसोर्स कर्ज की वो डेफिनेटली बात करेंगे। रिचर द डिस्ट्रिक्ट, पुअरर द पीपल, ये सब बात करेंगे। ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? और माइन्यूट डिटेल्स में अगर जाएं, ये सभी के लिए, नॉट ओनली धनबाद। तो मतलब ऐसी चीजें पूछ लेते, जैसे मुझसे पूछ लेता कि कौन सा 2 NH क्रॉस करता है तुम्हारे शहर से। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आसपास की पूरे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना। और ये मेरा प्रिपेयर्ड था, तो तुम्हारा भी होना चाहिए। कौन सी नदी है, कौन सा तालाब है बड़ा, कौन सा रोड है, यू नेवर नो, समबडी विल बी फ्रॉम धनबाद ओनली। 2 हो गया। तीसरा तुम्हारे हॉबी का था एग्जैक्टली, फिर से बोलना। So following startup and business strategies and technology news. हाँ, तो लिख सकते हो हॉबी में, बट वही है ना कि you need to basically convert it in the way that I was saying, कि अगर तुम टेक न्यूज फॉलो कर रहे हो तो उसका तुम्हारे लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, और अगर तुम सर्विस में आ जाओगे तो क्या करोगे।
जैसे जैसे ही मैंने कोविड आया तो मैंने कोबॉट करके एक रोबोट बना दिया, एक फोन बूथ सैंपल कलेक्शन डिवाइस बनाया था मैंने, जो पूरे इंडिया में रेप्लिकेट हुआ बाद में, वो कोविड सैंपल कलेक्शन के लिए। तो क्या है कि व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग आई अप्लाइड इट। तो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड में जाना होगा, ऐसे टेक्निकल हॉबीज को एप्लीकेशन बेस्ड में लाना होता है। जैसे मैंने लैंग्वेज वाले को भी जो आंसर दिया था कि उसका हो सकता है लैंग्वेज उसका टेक्निकल हॉबी है, पर वो अगर अपने लोकल डायलेक्ट का स्क्रिप्ट लिख लेता है ड्यू टू हिज हॉबी, दैट्स एन अचीवमेंट, राइट? दैट इज कमिंग आउट ऑफ हिज हॉबी। तो तुम्हारे टेक फॉलो करने से एक्चुअली क्या हो रहा है, हैव यू डन समथिंग और डू यू एस्पायर टू डू समथिंग, वो चीजें पहले से दिमाग में रख के ही ऐसी चीजें लिखना। अब क्या बैडमिंटन से तो क्या खेलते हैं, फिट रहते हैं, अच्छा लगता है। अब बैडमिंटन खेल खेल के हम कोई गरीब का घर तो नहीं बना सकते ना, राइट? तो वो कनेक्टेड नहीं है। बट ऐसी हॉबीज जो बहुत ही ऐसे नीश टेक्नोलॉजिकल है, दैट हैज टू कम विद अ बैकिंग ऑफ आउटकम्स। ऐसे फालतू में बकवास नहीं कर सकते ऐसी हॉबीज को लेकर, ठीक है? आलोक कुमार सिंह। नेक्स्ट को बोलिए अर्पित। Hello. Alok is coming, sir. Good evening, sir. Sir, I have a question related to habit section, sir. Sir, फ्री टाइम में मैं सर जो फैमिली फार्मिंग है उसमें हेल्प कर देता हूँ, तो सर क्या इसको लिख सकते हैं? Yes, why not? Best thing to do. फार्मिंग से अच्छी हॉबी कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। फार्मर इतने डिस्ट्रेस में है, just try to see it from a point of view of an engineer, doctor, whatever you are. Yes, sir. I am from engineering background, sir. Try to see it from that point of view. Okay, sir. और ऐसा पूछ लेंगे कि तो क्या किया तुमने, फार्मिंग में हो, इंजीनियर हो के फार्मिंग में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं एक दिन ऐसे ही सोचा कि डैड हमेशा रात को जाते हैं पंप ऑन करने के लिए, तो मैंने अपने मोबाइल फोन से वहाँ एक डिवाइस लगा दिया, यहाँ से डायल कर देता हूँ। मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में, मैंने घर पे ही बनाने की कोशिश की और बना लिया। तो मंगवा लो इंटरनेट से, खरीद, फोन से डायल करोगे तो पंप ऑन हो जाएगा। एक फोन उधर होता है, एक फोन इधर होता है, तो तुमको खेत पे नहीं जाना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट अप्लाई इट, ओके, इफ यू आर यूजिंग इट। हाँ, ठीक है। अर्पित शर्मा। Sir, I belong to Delhi, and I want to ask, sir, what kind of questions the interview board can ask about Delhi specifically? All the monuments, all the upcoming projects, Central Vista type, all the metro rail projects that is upcoming, all the government related things. Do you really think that schools have improved? Go to couple of schools of Delhi and ask the students and the parents कि पहले कैसा था और क्या सच में बदला है, ये जो इतना हल्ला मचा हुआ है कि स्कूल अच्छा हो गया है। Go to मोहल्ला clinics, visit couple of them, है ना? तो जैसे मुझे याद है कि मेरा एक बैचमेट था, उसको पूछा था लोटस टेम्पल गए हो, तो हाँ सर गए। किसने बनाया? तो सर याद नहीं। और कितने ऐसे हैं? सर याद नहीं। तो मुझे आके बोला यार कौन दिखता है ये सब यार। अब दोस्त लोग गए तो उधर कोने में खड़े होकर अपना बातचीत के सुट मारे लौट आए। मैंने बोला कि नहीं, यही अंतर है आप में और मुझ में। मैं जब गया था तो वहाँ एक बुकलेट देते हैं पतला सा, पता नहीं सब लोगों ने देखा होगा, है ना, 3 पेज का रहता है। तो वो दिया तो मैंने भी पढ़ लिया था, अच्छा बाहुला ने बनाया था, सिडनी में भी है, 8 है टोटल, और ये शांति का प्रतीक है, और ये है वो है, ऐसे ही पढ़ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो अभी अगर आप जब भी दिल्ली घूमो, आराम से घूमो, नेशनल म्यूजियम चले जाओ, पार्लियामेंट म्यूजियम चले जाओ, कपल ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ DU चले जाओ, है ना, JNU घुमाओ, थोड़ा सा घूम के आ जाओगे ना, तो ट्राई टू बी क्यूरियस व्हेन यू गो, है ना। थोड़ा सोचो कि क्या है ये, क्यों बनाया, किसने बनाया। कुतुब मीनार तो ठीक है, ऐबक ने बनाया, उसके आसपास वाले क्या है, छोटे छोटे इमारत हैं, थोड़ा तुरंत विकिपीडिया खोला, थोड़ा देख लिया, थोड़ा लिख लिया, ये करना शुरू कर दो अर्पित, है ना। Okay, sir. Sir, any book related to Delhi that you would like to refer? I didn't go through any, but you can Google it up obviously. I did not do because I'm not from Delhi. I was in Delhi, तो मैं बस थोड़ा बहुत देख लिया था इंटरनेट पे। Okay, sir. Thank you. Next is Devesh. Devesh, would request you next time when you join, please join in with your name. As of yes, now, sir. it's DC. सॉरी Okay. सर, मतलब Yes, okay, go ahead, please. सर मेरे एक बहुत ही मतलब वैसा क्वेश्चन है सर। एक तो मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है सर, मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, और सर आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इंटर IIT टीम। बट सर अभी क्या है, मेरी बॉडी देख के लगता नहीं होगा कि बंदा बैडमिंटन खेलता है, तो शुड आई पुट बैडमिंटन एज अ हॉबी? मतलब बहुत दिनों से खेला नहीं है, बट सर अभी जब से डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग हुई है
तो मैं सुबह सुबह जाके खेल लेता हूँ, बट सर मेरी बॉडी वुडंट जस्टिफाई माय, मतलब थोड़ा सा मैं आई एम लिटिल वेट बढ़ गया था मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो लिखनी चाहिए कि नहीं हॉबी सर? मेरे हिसाब से तो लिख के और ये 15 दिन में कम कर लेनी चाहिए, दोनों काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा सर, हाँ ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, मयंक थैंक यू। मयंक दुबे। सर एक हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन था मुझे। बताओ तो। सर ये मेरी अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से एक हॉबी मैं परस्यू कर रहा हूँ, मिनिएचर वुड क्राफ्टिंग। तो ये ठीक रहेगा कि नहीं सर? हाँ, काफी अगर ऑकवर्ड टाइप का लग रहा था। अच्छा नहीं, डू यू डू इट? यस सर, मैं शिप इन बॉटल्स जो होते हैं, बॉटल पे शिप डालना, वो मेरी अभी हॉबी है रिसेंटली, और मैंने चेस सेट वगैरह बनाया है। अच्छा, तो बहुत अच्छा, लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तुम्हें इतना थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम छत्तीसगढ़ सर। ये ट्राइबल लोगों से देख के मैंने सीखा था एक्चुअली। गुड गुड गुड, अच्छी हॉबी। ये एक्चुअली पता है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसी नीश चीजों पे ना डेफिनेटली सवाल पूछते हैं। अब तुम क्रिकेट लिख दोगे ना, अच्छा क्रिकेट है ये तो सब ये देखता है, तुम बताओ कुछ टेनिस के बारे में, समझ रहे हो? ये हो जाता है। ऐसी चीजें लिखोगे ना, दे विल डेफिनेटली आस्क यू, बिकॉज दे आर आल्सो बोर्ड ऑफ टेकिंग इंटरव्यू। दिन भर यही कर रहे हैं, 45 दिन से बेचारे यही कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें लिखोगे तो वो डेफिनेटली पूछेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे ना, यू विल गेट गुड मार्क्स। डेफिनेटली लिखो। थोड़ा सा ये सब देख लेना कि ये टॉय इंडस्ट्री क्यों डाई आउट हो रहा है। जैसे बनारस वाज यूज्ड टू बी अ हब ऑफ दीज वुडन टॉयज। ये टॉप जो आता है, लट्टू आता है, और छोटे छोटे ये सब बहुत बनते थे। अभी धीरे धीरे चाइनीज मार्केट्स की वजह से और ये मोबाइल फोन के आने से ये सबका यूटिलिटी कम हो गया है, तो लोग खरीद नहीं रहे, तो इनका बिजनेस भी खत्म हो रहा है। मिनिस्ट्री अभी देखो, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट किसके अंदर आता है, ये सब देख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर आता है, टेक्सटाइल्स, है ना। अब हैंडीक्राफ्ट्स का सबसे बड़ा एक जनपद में है शायद 8 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें सारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट, वो सारे चीजें मिलते हैं, वो थोड़ा देख लेना। एक्सपो जो लगते हैं वर्ल्ड ओवर, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, इंडिया होस्ट करता है एक एक्सपो नोएडा में हैंडीक्राफ्ट्स का, ऐसे वुडन आर्टिकल्स का, वो देख लेना। ये सब चीजें देख लोगे ना तो दे विल फील वेरी गुड यार, मतलब ये बहुत अच्छी हॉबी है। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी नीश चीजें रखो। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। Shwetab? Yes, sir. I am Shwetab from Ranchi, Jharkhand. Sir, I have 2 questions. Sir, पहला कि sir, Jharkhand में sir, I have stayed in Bokaro and Ranchi, and most of the time was in Bokaro district. So till what depth we have to study about the tribal culture? Because I'm not that much exposed to the tribal environment of Jharkhand. Because मेरी सर हायर स्टडीज बाहर हुई है, उसके बाद फिर मैं बाहर वर्क करने चला गया था। देखो इन सब का ना इतना नहीं जानना है कि पूरा मतलब उसमें रिसर्च हो जाए, पर इतना भी नहीं दिखाना है कि इग्नोरेंट हो टाइप का। जैसे लिस्ट ऑफ ट्राइब्स फाउंड इन झारखंड, 10 अगर हैं तो 6 के नाम याद होने चाहिए। लिस्ट ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ झारखंड, अगर 10 हैं तो 4 के नाम याद होने चाहिए। लिस्ट ऑफ ट्राइबल फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड, अगर 15 हैं तो 5 के नाम याद होने चाहिए, उनके मंथ याद होने चाहिए। और ट्राइबल फूड अगर 5 है तो उसमें से 4 के नाम याद होने चाहिए, उसका इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए। थोड़ा समझो बात को ना, कोई रिसर्च नहीं करा रहा आपसे, लेकिन बोलोगे नहीं सर ट्राइब पता नहीं सर 10-12 होंगे, तो बड़ा इग्नोरेंट सा लगता है ना। तो तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि बहुत पढ़ लिया है, पर ये भी नहीं दिखाना है कि हमको क्या मतलब है, ट्राइब होगा उधर क्यों है। तो थोड़ा जरूर पढ़ लेना, बट इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। और सर बोकारो स्पेसिफिक क्या क्या पढ़ना होगा सर? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बोकारो नहीं दिखा है। कुछ भी नहीं, बस सब इंटरनेट और पब्लिक ऐप डाउनलोड करके डेली न्यूज़। So one last question is with respect to my hobbies. So basically, sir, I have 2 hobbies. One is heartfulness meditation. It is an institute to which I have attached since 2011, और my parents are also a part of it. So उसकी टेक्निक्स वगैरह मुझे पता है कैसे करते हैं, एंड बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन वाइज भी पता है। सेकेंड इज सर चाइल्डहुड हॉबी है सर, वो मैं विसल करता हूँ टू द ट्यून्स ऑफ स्लो सॉन्ग्स। तो जैसे आप बता रहे थे कि इसकी एप्लीकेशन वाइज वैसी हॉबी रखो, तो लास्ट टाइम सर जब मैं यूपी की इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें मैंने रिसर्च किया था, तो इसके एप्लीकेशंस में आया था कि इन अ स्मॉल विलेज इन टर्की पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू दिस विस्लिंग, एंड जहाँ पे समटाइम्स लाइक इन डिजास्टर एंड ऑल, जब पीपल कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो अकूस्टिकली वाइज विस्लिंग एक चैनल बन जाता है टू कम्युनिकेट टू लार्ज डिस्टेंस। तो सर ऐसा कुछ ये लिखना सही रहेगा या नहीं? देखो एक बात समझो, वो मैं पहले वाले भी बच्चे को बोल रहा था
देखो हॉबी दो टाइप की है, एक हाईली टेक्निकल नीश टाइप और दूसरा हाईली फन टाइप। जरूरी नहीं है कि हॉबी से हम कुछ करें ही, है ना। अब लिसनिंग टू म्यूजिक का तो बस सुनते हैं भाई, मजा आता है। जरूरी थोड़ी है कि हम म्यूजिक से फिर नीरो बन के पूरा गांव को घुमाएंगे, जरूरी नहीं है यार। इट कैन बी डन फॉर फन ओनली, राइट। तो ये मैंने शायद गलत मैसेज दे दिया लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है कि हॉबी हैज टू बी कनेक्टेड विद समथिंग पॉजिटिव आउटकम रिलेटेड। नो, इट इज फॉर योरसेल्फ, यू फील गुड अबाउट इट। when I do whistle, after whistling for half an hour I can work for 10 hours. That is why I whistle. यस सर, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है सर, एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है सर। बस वही है और कुछ नहीं है। यू डू नॉट थिंक मच अबाउट इट कि इससे और क्या क्या कर सकते हैं, देश बदल सकते हैं कि नहीं। जरूरी थोड़ी है देश बदलना है। बैडमिंटन खेलते हैं, मजा आता है, बस जरूरी थोड़ी है कि हम उससे किसी का घर बना देंगे और उससे चैरिटी का एक चलाएंगे, उससे जो कलेक्शन होगा उससे किसी का कैंसर का इलाज करेंगे। ये सब जबरदस्ती का नहीं घुसाना। फन इज फन, टेक इट एज फन, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आई थिंक इट इज ओवर बाय। हाँ Yes, sir. Yes, sir. There's only one question which is pending out of in the chat box. If I can read it out for you, sir. If an interview after asking why civil services, they ask what schemes or policies do IAS implement. So, what schemes or policies should I say, keeping in mind to give diverse answer? Question mark. अच्छा, देखो इस उसमें क्या है ना कि स्कीम्स है ना, एक तो है लैंड। बेसिकली डिप्टी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स आर लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स, तो वो एक गवर्नमेंट की काम है लैंड मैनेजमेंट, तो वो एक काम है। इसके अलावा हेल्थ है, एजुकेशन है, तो एक डेवलपमेंट वाला पार्ट है और दूसरा एक रेवेन्यू वाला पार्ट है, और इन दोनों से आगे एक लॉ एंड ऑर्डर। यही तीन पार्ट है। जनरली इसको ऐसे देखते हैं कि कलेक्टर हैज टू हैंड्स, डीडीसी एंड एसपी। डीडीसी लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट, एसपी लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। तो आप इन्हीं दोनों चीजों को हेड करते हो। तो बेसिकली स्टेट का मैंडेट है पीसफुली डिस्ट्रिक्ट रन करना है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर आपको दिखना है, और साथ ही साथ लोगों का प्रोग्रेस भी होना चाहिए, उसके लिए आपको डेवलपमेंट दिखना है। अब आपको स्पेशली पॉलिसीज की बात करनी हो तो आप एजुकेशन में चले जाइए। स्कूल्स अच्छे से चलने चाहिए, सभी बच्चों को टाइम से खाना मिलना चाहिए, बुक्स मिलने चाहिए, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वो एक पार्ट है। हेल्थ है तो आपका हेल्थ फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, है ना। उसी तरह आंगनवाड़ी सेंटर से ये सब आपका इधर आ गया डेवलपमेंट में। नरेगा अच्छे से चलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए, और 15th फाइनेंस कमीशन के फंड जो डिवॉल्व हुए हैं वो अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए, वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का। लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट है कि जो 107 है, 133 है, 144 है, ये सब टाइम से लगते रहना चाहिए जब जहाँ जरूरत हो, और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जरूरत पड़े तो 182 में FIR भी होना चाहिए। ये 6-7 चीजें इधर लॉ एंड ऑर्डर की और 6-7 चीजें डेवलपमेंट की अगर दिमाग में है तो डिस्ट्रिक्ट मोर और लेस रन्स बाय दैट। Sir, no more questions, but I would request the student candidates. Note 6 Pro was the question who had asked. So request all friends to please put in your name so that we can address you by name. Goel sir, please address sir. संकल्प परिवार की तरफ से श्री आदित्य रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमारे प्रतिभागियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, प्रैक्टिकल अप्रोच थी, और उनके जितने भी सवाल थे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उत्तर दिया, और मुझे आशा है कि प्रतिभागी बच्चे लोगों को इस सेशन से बहुत ही लाभ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. We'll definitely call you again. Your valuable advice to our students. All the best. Thank you, sir. Namaskar. Thank you all, guys. Thank you. Thank you, sir. Namaste, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर आप संकल्प पे मॉक में कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर? आप मॉक में आना सर वहाँ पे। Okay, for the information of all, Riyarth has asked this question and I will put it across to all candidates. हम लोग 23 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, बट उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. If you have registered and put in your dates, please put it across on the on sankalp.org. Go to the banner of interview guidance, fill up the form. And if you don't have the details of the, because we have various activities coming up, including the individual mock, the hobby session, one-on-one DAF sessions. So if you want further information, you can get in touch with me also.
My number is 971-601-7787, and my name is Sandeep Trivedi. So you can get in touch with me. Otherwise, you can register yourself. 23rd onwards, we are starting the mocks at RK Puram Center, Sankalp. Any further questions? No, that's all. Thank you, sir. Riyarth, any other further questions? Yes. No, sir. Mayank, you Thank have you. a question. You've not muted yourself. No, sir. No, sir. I don't. Sir, I So have in a that case, we can. Yes, please, Shweta, bataiye. So, will there be any online session? Because sir, I am a working professional in Lucknow. No problem. No problem, Shweta. You have an option either to go in for online or offline or both. अगर आप एक चाहते हैं कि since you are working, एक online चाहते हैं तो एक online ले लीजिएगा. जब आपका इंटरव्यू पास आएगा तो एक आप ऑफलाइन ले लीजिएगा. तो जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you. Or further questions? So can I end the meeting in case no more questions are there? Chalo, we end the meeting. Namaste. Thank you, sir.